Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And in today's lecture we are going to start a new topic, that is immunology. Up to now we have completed about all the disease, and I hope you have watched all the lectures on introduction of human health and disease, bacterial infections, viral infections, protozoal infections, helminthic infections, and last but not the least, ringworm infections. Now onward we will be discussing about immune system. Study of structure and functioning of immune system is referred as to that branch of science is referred as to immunology. In immunology, first we will be discussing about the different types of immunity, components of immune system and types of immunity. Later on we will be learning about the structure of different immunomolecules or immunoglobulins which are involved in showing immunity. What is the antigen, what is the antibody, how antigen and antibody interact. The immunology would be continued after in learning of vaccination, organ transplantation, and eventually we have to study two more disease. One is AIDS and second is cancer. So let us start our lecture. Immunology is referred, or simply immunology is defined as study branch of science which is dealing with the study of structure and functioning of immune system. If you have to define the term immunity is simply defined as ability of someone's body to fight against infection. Immunity, it is the ability of one's body to fight or to resist infections. See, for example, if there are certain pathogen which got success in entering inside my body start fighting with those pathogen, and if my body is not allowing those pathogen to multiply and grow inside, then I am immune. I am having a great ability to fight against infection. And if my body is not able to fight against that infectious agent, I am not that much good immune, or my immunity is very less. So simply ability of individual body to fight against the infection is referred as to immunity. We used to say ना उसका immunity बड़ा strong है, उसका immunity बड़ा weak है. तो immunity exactly होता क्या है? हमारे बॉडी का वो ability जिसमें हम infection से fight कर रहे हैं. और देखो immunity रजिस्ट नहीं करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया. अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ही एंटर ना करे, आपके बॉडी के अंदर वायरस ही एंटर ना करे. पैथोजेंस आर गेटिंग एंटर्ड, योर बॉडी इज नॉट अलाउिंग देम टू ग्रो. डज इट क्लियर? इट मेक्स ए पॉइंट. ऑलराइट, देयर इज अनदर टर्म, एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी. If somebody is having a lesser immunity, absence of immunity is referred as susceptibility. So there is another term which we call susceptibility, and susceptibility refers to absence of immunity. So we used to say that group of people is more susceptible to get that infection. जो आपका कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट नहीं कर सकता, या बैक्टीरिया के अंदर एडेप्टेशन आ गया है, और जो भी आपके इम्यून सिस्टम मॉलिक्यूल्स बना रहा है उन मॉलिक्यूल को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं बैक्टीरिया. तो हम कहते भी हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग इस बीमारी से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, या पर्टिकुलर एरिया के लोग इस बीमारी से ज़्यादा इम्यून हैं. इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका बॉडी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बना रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते, तो आप ज़्यादा इम्यून हो. और अगर आपका बॉडी वो मॉलिक्यूल बना ही नहीं पा रहा है, या आपका बॉडी वो मॉलिक्यूल बना रहा है पर बैक्टीरिया के अंदर कुछ अडेप्टेशन हो गया है, बैक्टीरिया हैज़ इवोल्व्ड
एंड दे बिकम रेजिस्टेंट टू दैट, तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हो। तो एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी और लैक ऑफ इम्यूनिटी इज रेफर्ड एज टू susceptibility. When we talk about the father of immunology, Dr. Edward Jenner is regarded as the father of immunology, and there is no fun in telling that Dr. Edward Jenner got the light after he discovered a treatment for smallpox. देखो स्मॉल पॉक्स का केस में आपको पढ़ाया था कि एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया था कि देयर वाज ए पेशेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। मेनली उन्होंने देखा कि जो मिल्क मेड्स वगैरह है वो इम्यून हो गए स्मॉल पॉक्स से। जो वैक्सीन बनाने का प्रिंसिपल था वो ये था कि जैसे जैसे बैक्टीरिया एटीन्यूएट होता चला जाता है वैसे वैसे उसकी पैथोजेनिक एबिलिटी कम हो जाती है, और कम पैथोजेनिक एबिलिटी वाला बैक्टीरिया वो एंटीबॉडी तो बना सकता है, आप उसके रेस्पॉन्स में आपका बॉडी वो एंटीबॉडी बना लेता है। तो जब वैक्सीनेशन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल ही होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी सेल आपको एक डेड या वीकेंड या एटीन्यूटेड बैक्टीरिया दिया जाएगा, और उसके रेस्पॉन्स में आपका बॉडी कुछ एंटीबॉडी बना लेगा, कुछ मेमोरी सेल बना लेगा। तो जब भी रियल इन्फेक्शन आपको होगा तो उन मेमोरी सेल के बिहाफ पर एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं। तो जनरली अगर एडवर्ड जेनर साहब की बात की जाए, स्टोरी तो शुरू हुई थी 450 BC में, जब वर्ल्ड में कभी प्लेग हुआ करता था। प्लेग तो देखो बाद में भी पैंडेमिक हुआ था, इन 1820s प्लेग पैंडेमिक हो गया तो लैक्स ऑफ पीपल वर डेड, बट उस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। आज अगर लाख मर जाते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। खैर प्लेग का उन्होंने कुछ ऐसा ही शुरू किया था कि भाई जो भी आपके वो लोग जो प्लेग को सर्वाइव कर गए थे उनका सीरम वगैरह यूज़ करके इनोकुलेट किया जा रहा था। तो फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिए डॉक्टर एडवर्ड जेनर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो बेसिक इम्यूनोलॉजी होता है उसके अंदर आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। देन आपके पास जो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी आएगा उसके अंदर सारी पैथोलॉजीज़ पढ़ेंगे आप, चाहे वो वैक्सीनेशन हो चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, वो सारा का सारा क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगा। तो हम बेसिक इम्यूनोलॉजी की क्लासेस शुरू करते हैं। तो आई गेस द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज़ क्लियर। एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू रजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन इज़ इम्यूनिटी। डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कह देते हैं कई बार इसको। इम्यूनिटी इज समटाइम रेफर्ड एज टू डिजीज़ रेजिस्टेंस। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? इफ देयर इज लैक ऑफ इम्यूनिटी। नाउ आई विल स्टार्ट फर्स्ट एक हम ना ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी शुरू करते हैं कि भाई इम्यूनिटी को आपने कैसे डिफाइन किया, कैसे क्लासीफाई किया है। इम्यूनिटी आपकी इनबॉर्न भी हो सकती है और इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड भी हो सकती है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इन दिस लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इनेट इम्यूनिटी टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी और जेनेटिक इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। तो स्टार्टिंग विद इनेट इम्यूनिटी, starting with classification of immunity, classification of immunity. Immunity is classified as, first we will be talking about innate immunity. Innate immunity is inborn, और आई कैन से इट इज़ जेनेटिक, और आप याद रखेंगे इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है किसी एक पैथोजन के लिए। तो टुडेज लेक्चर वुड बी ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टू मेजर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। Acquired immunity is non-genetic, and that is immunity which you got after birth. Immunity which you got after birth. Remember, acquired immunity is a specific type of immunity. Innate immunity is non-specific and acquired immunity is specific. तो जब आपको acquired immunity पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसका एक फीचर ही बताया जाएगा कि डाइवर्सिफाइड के साथ साथ बहुत स्पेसिफिक होती है। तो अगर आपको पहली बार कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया है, तो टाइफाइड को बैक्टीरिया को हैंडल करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बनाए जाते हैं, और वो जब भी टाइफाइड इन्फेक्शन होगा तो वही स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बनाए जाएंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपके बॉडी को लेट्स से XYZ आपके बॉडी को ना ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है किसी को, तो उसके अंदर एंटी टीबी एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो एंटीबॉडीज़ है वो मिल जाएंगे। वो एंटीबॉडी टाइफॉइड के काम नहीं आने वाले। यू गॉट माई पॉइंट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम फर्दर क्लासीफाई कर देंगे, जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। इट वुड बी फर्दर क्लासीफाइड एज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर याद रखेंगे, अगर आपका बॉडी खुद अपने एंटीबॉडीज़ बना रहा है तो उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। आई रिपीट, अगर आपका बॉडी खुद से अपने एंटीबॉडी बना रहा है तो आप उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर आपके बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो इन एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी मेक्स इट्स ऑन एंटीबॉडीज़। जब हम ABS लिखेंगे आगे चल के पूरे इम्यूनोलॉजी में, तो ABS का मतलब होता है एंटीबॉडीज़। और पैसिव के अंदर प्रीफॉर्म्ड, जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इन बॉडी। फिर इसके भी हम दो अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी, इट कुड बी नेचुरल और इट कुड बी आर्टिफिशियल। तो आप आगे पढ़ोगे, इट कुड बी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और इट कुड बी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सिमिलरली पैसिव के दो टाइप पढ़ेंगे, इट कुड बी नेचुरली एक्वायर्ड और इट कुड बी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी बता देता हूँ मैं। जो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है, अगर आप किसी प्रीवियस इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हो तो उस प्रीवियस इन्फेक्शन की मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, और जब भी कभी दोबारा री इन्फेक्शन होगा तो वो मेमोरी सेल एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो जब आपको क्लिनिकली और सब क्लिनिकली नेचुरली आपका बॉडी कुछ एंटीबॉडी बना रहा है, उसको बोलते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो दैट इज इफ यू हैव बीन recovered from previous infections, that type of immunity is known as active immunity। उसको ना मैं बताऊंगा आपको कि उसको सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स भी कहते हैं जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो आपका बॉडी कब एंटीबॉडी बना सकता है कि उसकी मेमोरी सेल पहले से हो। अब मेमोरी सेल कब होगी पहले, क्या तो वो प्रीवियस इन्फेक्शन की है या फिर वो वैक्सीनेशन की है। बचपन में आपने कोई वैक्सीनेशन करा लिया था और बड़े होकर जब आपको एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ तो आपका बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ बना रहा है। तो अगर वैक्सीनेशन कराया तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, और प्रीवियस इन्फेक्शन के बिहाफ पर है तो नेचुरली एक्वायर्ड। ये क्लियर हुआ बच्चों। देन पैसिव में बात करें तो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी आपके बॉडी में जाना है। अब क्या क्या हो सकता है, कोई सोचो नेचुरल मीन्स जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी आता है। आंसर इज इट कुड बी ट्रांसप्लेसेंटल के प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा रहा है, या फिर इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रम। तो प्लेसेंटा को कौन सा क्रॉस करके जाता है, यस प्लीज़, IgG। इट कुड बी ट्रांसप्लेसेंटल। भाई आपने पढ़ा है कि जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाता है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgG। और इट कुड बी वाया फीडिंग ऑफ मिल्क, कोलेस्ट्रम वाया मदर्स मिल्क। कौन सा होता है यहाँ पर, दिस इज IgG हेयर, एंड कोलेस्ट्रम से कौन सा होता है, IgA। इट मेक्स ए पॉइंट। तो भाई नेचुरली एक्वायर्ड रेडीमेड कहाँ से मिल सकती है, फ्रॉम द मदर, और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड कहाँ होती है। ये केस याद रखना, ये बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होती है वो मेनली आपको ना स्नेक बाइट हो गया है, तो स्नेक बाइट के केस में आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दिया जाता है। इट कुड बी इन केस ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, कुड बी इन केस ऑफ स्नेक बाइट। एंटी विनोम जो होता है उसमें आपको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एंटीबॉडी दी जाते हैं। और कुड बी जो एंटी टेटनस होता है, याद है आप चोट लगवाने के बाद जाते हो डॉक्टर के पास कि हमें एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाने में वक्त लगा दे और आपको
टेटनस हो जाए। तो स्नेक बाइट में या एंटी टेटनस में जो इंजेक्ट किए जाते हैं वो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होगा। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है तो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अवर एक्टिव इम्यूनिटी टॉपिक। अभी तो हम इसको सिर्फ क्लासीफाई करके छोड़ देते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इनेट इम्यूनिटी। सो लेट अस स्टार्ट विद इनेट इम्यूनिटी। देखो इनेट इम्यूनिटी एज आई टोल्ड यू इट्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, इट्स नॉन स्पेसिफिक, इट्स जेनेटिक। इनेट इम्यूनिटी, और इनेट इम्यूनिटी के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों ही आ जाते हैं। तो वो दोनों क्या होता है आई विल बी टेलिंग यू। लेट मी स्टार्ट अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, एंड एज आई टोल्ड यू व्हाट आर द अदर नेम्स। नाम से इसके सारे काम पता चलते चले जाएंगे। ये सिंस बर्थ है तो इनबॉर्न होती है, इसी को जेनेटिक भी बोलते हैं। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जब हम इनेट इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, देयर आर सर्टेन इम्यूनिटीज़, कुछ बीमारियों के लिए इम्यूनिटी हमारे पास सिंस बर्थ ही होती है, या आप कह सकते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ बीमारियां कभी भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन्स आर नेचुरली इम्यून टू अ डिजीज़ विच वी कॉल डिस्टेम्पर। जो डिस्टेम्पर होती है बेटा, ये एक डॉग्स के अंदर बीमारी होती है। डिस्टेम्पर इज़ ए वायरली इन्फेक्टेड डिजीज़ टू डॉग्स, और ह्यूमन में ये डिस्टेम्पर का वायरस नहीं सर्वाइव कर सकता है। ऐसी इससे और कॉमन बता देता हूँ। एक आप पढ़ते हो इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद, आप पढ़ते हो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के बारे में, आप पढ़ते हो अबाउट एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। डू यू नो जो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है वो चिकन्स को कभी भी बीमार नहीं करता। चिकन्स आर नेचुरली इम्यून टू एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। रीज़न बीइंग इनके बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो देयर आर सर्टेन इम्यूनिटीज़ विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिंस बर्थ, and such immunity is known as innate immunity. Now in innate immunity we are going to discuss about 4 barriers. There are 4 barriers of innate immunity, or 4 barriers of immunity which protect us from getting infections. So let us discuss about barriers of innate immunity now. Barriers of innate immunity. So barriers of innate immunity. When we start about the barriers of innate immunity, there are total of 4 barriers. The first barrier which we are going to discuss, that would be your physical barrier. In barriers of innate immunity, the first barrier, it would be physical barrier, second would be physiological, third would be cellular, and fourth would be cytokine. The physical barriers include those things which are physically not allowing the entry of pathogen in our body. The physical barrier, they include our skin. Physical barrier include skin, as well as physical barrier include mucous membrane, mucosa और mucous membrane. तो पहला थोड़ा सा फिजिकल बैरियर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर को डिस्कस कर लेंगे। स्किन की जब बात करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, और किसी भी तरह का पैथोजन हो, स्किन का एक जैसा ही कहते हैं, स्किन का एक जैसा ही रेजिस्टेंस होता है। स्किन एक मैकेनिकल बैरियर जो नहीं अलाउ करता है एंट्री ऑफ पैथोजन इन योर बॉडी। स्किन के अंदर देयर आर 2 पार्ट, देयर इज वन लेयर ऑफ स्किन विच यू कॉल एपिडर्मिस, and other layer of skin which you call dermis. This epidermis is made by dead cells, and that dead cells have a resistant protein. What is the name of that protein? Dead cells have a resistant protein, and that resistant protein is keratin. The resistant protein is keratin.
And what is the name of that layer which is having a lot of keratin inside it? That layer of epidermis which is having abundant of keratin, we call that stratum corneum. तो जो सुपरफिशियल लेयर होती है, याद है कुछ केरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में? तो जो सबसे टॉपेस्ट लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम, दैट इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस. एक पार्ट तो ये हो गया. सेकेंड पार्ट जब डर्मिस की बात करते हैं, इफ आई आस्क यू विच इज थिन लेयर, एपिडर्मिस इज थिन और डर्मिस इज थिन? Epidermis is very very thin and dermis is a thick part. The dermis of our skin is much thicker than the epidermis. And dermis, it consists of blood vessels. It consists of blood vessels. It consists of sebaceous gland. Sebaceous gland is the other name of oil gland, and it consists of sudoriferous gland. And sudoriferous gland is the other name of sweat gland. So sweat gland, sebaceous gland and blood vessels, these are the component of dermis. And these sebaceous gland, they produce a oily secretion, and that oily secretion is known as sebum. And this sebum consists of a lot of fatty acid and a lot of fatty acid as well as a lot of lactic acid. And to be very exact, this fatty acid and lactic acid maintain the pH of skin in a range of 4 to 5, and at that pH the bacteria is not able to grow. So even the oily secretion of skin is not allowing the bacteria to grow on your skin. Your sweat is not allowing the bacteria to grow on your skin. Sebum and sweat, they used to dissolve the bacterial cell membrane. You know, sometimes what happen? Sometimes there are certain bacteria, and these bacteria start acting very very smart. These bacteria, they start acting very very smartly, and they start metabolizing that sebum. I mean to say, they got an ability even to survive in the sebum environment. And if these bacteria start, see in the sebum, if you do remember, in the dermis there are certain hair follicle as well. And in the glands of hair follicle, there are certain sebaceous gland. अगर मैं पूरा hair follicle आपको बना के दिखाऊँ यहाँ पर, let's say this is the hair follicle here, and in the hair follicle there are certain sebaceous gland which are present. And if this bacteria is able to metabolize that sebum, infection of such bacteria which can metabolize sebum, it can result in acne. There are so many theories which used to describe the cause of acne in human. There is one theory that hormone flushes, a lot of testosterone in human can cause acne. Or at the time of puberty, due to hormone flushes, generally individuals start having acne. And if you are having certain gastric problem, you start having acne. There are so many theories. One of the most common theories, or one of the most common fact is that there are certain bacteria which start growing on your skin, generally on the skin of your face. They love your face, that's why they are going there, and those bacteria are the major cause of acne. So we are having certain antibacterial drug which has been used to treat acne. Anyways, don't go in that detail. Come back here. That skin is the first physical barrier. Stratum corneum of skin is a thin epidermal layer which consists of keratin and does not allow the entry of lot of bacteria. And even the dermis keep on producing sweat and keep on producing sebum, and that sweat and sebum does not allow the growth of bacteria. तो ये हो गया बेटा फिजिकल बैरियर के बारे में. इज दैट क्लियर? सेकेंड हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में. द सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी is physiological barrier.
नहीं नहीं, अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं पढ़ना है, अभी सेकंड कंपोनेंट पढ़ना है, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो भी एक फिजिकल बैरियर में आता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर होगा? द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दे ऑल एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। सिर्फ फिजिकल बैरियर की जब बात कर रहे हैं, अगर किसी पैथोजन को आपके बॉडी के अंदर इन्वेड करना है तो उनको इन फिजिकल बैरियर को सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको किसी पैथोजन को बॉडी के अंदर इन्वेड करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉडी एंड दिस पैथोजन वांट टू इन्वेड इट, तो सबसे पहले तो क्या है कि उसके जितने स्किन के बैरियर वो क्रॉस करो। अब स्किन के बैरियर दो तरह से क्रॉस हो सकते हैं। क्या तो इसने पहले से कोई इंजरी ले रखी है, हो सकता है इसको पहले से यहाँ पे कोई इंजरी हो रही हो, तो उस इंजरी से बैक्टीरिया अंदर चला जाए, कुड बी ए केस। या जो आपका पैथोजन है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ हुक डेवलप कर गए हैं जो आपकी स्किन को बोर करके चले जाते हैं। Remember Ancylostoma or hookworm? I told you they have a property, they have a ability to bore inside your skin. तो पहला जो बैरियर है वो तो इसको उनको क्रॉस करना है। अब स्किन को क्रॉस करने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि वाया माउथ एंटर कर लिया जाए, वाया नोज एंटर कर लिया जाए। कोई भी बैक्टीरिया वाया माउथ या वाया नोज जाएगा तो कहाँ स्किन सामने आ रही है। तो सेकंड वही फिजिकल बैरियर आएगा, सिक्रेशन ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन। म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। और ये म्यूकस कोशिश किया करता है, म्यूकस का अटेम्प्ट ये होता है कि उस पैथोजन को डिसॉल्व करके क्या तो बाहर स्पीड कर दिया जाए या फिर उसको एलिमेंट्री कैनाल और फीकल मैटर से बाहर निकाल दिया जाए। तो जो सेकंड बैरियर होते हैं वो होते हैं आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के बैरियर। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। तो अगर किसी पैथोजन को आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? इस म्यूकस मेम्ब्रेन के बैरियर से बचने का तरीका होना चाहिए। फ्लू का जो वायरस होता है उसके सरफेस प्रोटीन अडहेयर कर जाते हैं विद द म्यूकोसल सेल, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से वो बच जाता है, वो अटैच हो जाता है। ऐसे कॉमन कोल्ड का है, मैं बताया भी तो शायद तुम्हें आईकैम के बारे में, CD54 के बारे में। तो जो भी पैथोजन है, ऐसे तो हम दिन भर हज़ारों लाखों, आप याद रखना जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि योर बॉडी 24/7 इज़ ऑन ए फाइट, इज़ ऑन ए वॉर। तो योर बॉडी इज़ ऑलवेज इन ए वॉर स्टेट एंड इफ़ अगर आप हेल्दी हैं तो आपका बॉडी वॉर जीते जा रहा है, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं, कुछ भी अनकम्फर्ट अनईजीनेस फील कर रहे हैं, तो आपका बॉडी वॉर नहीं जीत पाता है। या वॉर के अंदर जो भी पैथोजन से जो भी इन्वेडर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? सो आवर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ वॉर 24/7। तो पहला बैरियर हो गया। ओके, तो वो मैंने तो हज़ारों बैक्टीरिया इनहेल किए, हज़ारों वायरसेस इनहेल कर लिए, मुझे कॉमन कोल्ड ही क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉमन कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं मेरे पास, एंड कॉमन कोल्ड के वायरस के ऊपर वो प्रोटीन है जो जाके बाइंड कर सकता है। यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सॉरी, यूरिनोजेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन कीप ऑन वॉशिंग द यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कीप ऑन वॉशिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो पहले जो बैरियर होंगे वो फिजिकल बैरियर है। इन फिजिकल बैरियर द पैथोजन नीड टू क्रॉस द स्किन एज वेल एज mucous membrane barrier. I hope it makes a sense now. The second barrier which we are going to discuss is physiological barrier. Physiological barrier. तो ठीक है, कोई भी पैथोजन इन्वेड करके या कुछ भी करके बॉडी के अंदर चला गया, वो चाहे स्किन से इन्वेड कर गया या म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा से बच गया, और वो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी का क्या अटेम्प्ट होता है उस पैथोजन को मारने का? वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड पीएच ऑफ स्टमक। नेचर हैव मेड एडल्ट ह्यूमन स्टमक वेरी वेरी एसिडिक। तो जितने भी आप टॉक्सिन्स इनगल्फ कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, जितने बैक्टीरिया आप खा रहे हैं, वो सारे पीएच इस पीएच पे जाके डाई कर जाए। एक आपका नेचुरल रेजिस्टेंस है ये। डू यू नो अक्सर बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं? मोस्ट ऑफ द आपने पढ़ा भी है वॉर्म्स में दैट चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन टू दैट इन्फेक्शन, डिप्थीरिया में दे आर मोर प्रोन टू दैट इन्फेक्शन। रीज़न बीइंग उनका पीएच उतना हाई नहीं होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर उतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो pH of stomach, what is the normal pH of stomach in adult? It is kept between 1.5
to 2. So pH of stomach is a physiological barrier which does not allow the survival of many pathogen. Second, और body secretions पे आते हैं. Lysozyme are antibacterial. Lysozymes, these are antibacterial enzymes, antibacterial agents. They are so almost all of the body secretion they make lysozyme. Almost all of the body secretions have lysozyme. Lysozyme कहाँ पर नहीं होता है? Lysozyme आपके CSF में नहीं होता है, Lysozyme आपके स्वेट में नहीं होता है, और Lysozyme आपके यूरिन में नहीं होता है. बाकी जितने भी बॉडी सिक्रेशंस हैं, मैं तो कहूँगा आप TS और स्लाइवा को तो जरूर याद रखें. TS में भर भर के Lysozymes हैं. कह देते हैं कि कई बार आप व्हेन यू यूज टू क्राई तो आपकी आंखें साफ हो गई हैं. व्हाट इज द मीनिंग? A lot of lysozymes has been produced and lot of antibacterial activities has been done. So lysozymes, they are much abundant. They are abundant in tears and saliva. और मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ लाइसोजाइम कहाँ नहीं होते हैं. दे आर नॉट present in CSF and urine and last but not the least sweat. शुक्र है sweat does not have lysozymes. तो सेकंड जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा आपका लाइसोजाइम. थर्ड, in physiological barrier there are other secretions. There are certain secretions which has been produced by your ear. Remember, ear के अंदर कुछ modified sweat gland होती हैं जिनको सीरोमिनस ग्लैंड कहते हैं, और सीरोमिनस ग्लैंड एंटीबैक्टीरियल सिक्रेशन बनाती है. वो एंटीबैक्टीरियल नेचर होता है और वो इंसेक्ट रिपेलेंट भी होता है. तो थर्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप लिख लेंगे सीरोमेन ऑफ ईयर. फोर्थ फिजियोलॉजिकल बैरियर में लिखेंगे दे आर सर्टेन बॉडी ऑर्गन इन्वायरमेंट विच डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन में पढ़ा है आपने अबाउट वजाइनल इन्वायरमेंट. वजाइनल सिक्रेशंस आर वेरी एसिडिक इफ यू डू रिमेंबर, एंड दे डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इवन urinary tract, your urine is being acidic and it keep on washing all the bacteria which are present in the tract. ठीक है, तो pH of stomach, lysozymes, lumen of ear, vaginal secretions, urinary tract. Don't forget about saliva. मैंने वैसे saliva वहाँ मेंशन भी कर दिया था. saliva में lysozyme के अलावा एक और चीज़ एंटीबैक्टीरियल होती है. saliva में lysozyme के अलावा thiocyanate ion, they are also antibacterials plus lysozyme. So your saliva is antibacterial, your pH of stomach is antibacterial, lumen of ear is antibacterial, vaginal secretions are antibacterial, urinary tract is secretions are antibacterial. Last but not the least, a high temperature is also a physiological barrier. When I say about high temperature, I mean to say about fever. When I say about high temperature, I mean to say about fever. What is fever? Let me tell you. कुछ लोग ना फीवर को सेलुलर बैरियर में भी इंक्लूड करते हैं, पर आप फिजियोलॉजिकल बैरियर में उनको याद रखें. होता ये है. अच्छा, फीवर कैसे होता है? फीवर कोई बीमारी नहीं है. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. जब आपको माइल्ड फीवर हो रहा है तो याद रखिए आपका बॉडी आपके लिए फ़ाइट कर रहा है. अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो गया है तो आप ये भी याद रखिए उस फाइट में आपका बॉडी हार चुका है और अब वो जो टॉक्सिन्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं. तो व्हाट हैपन, लेट्स से दिस इज़ योर बॉडी सेल. दिस सेल इज़ वेल नोन फॉर phagocytosis. And this is a large eater. What is the name of that large eater? Macrophage. And this macrophage is well known for phagocytosis. Phagocytosis के बारे में भी बताऊंगा अभी when we will be discussing about cellular barrier.
अब जो भी कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो फैगोसाइटोसिस को इनगल्फ कर रहा था वो. नाउ दे आर सर्टेन pathogens which are present there and they are not engulfed by phagocytosis. They are not engulfed by phagocytosis, right? So this macrophage is trying to engulf them. This macrophage is opening mouth, but these smart bacteria are not able to get control. Now what these macrophages do? They start winking. They start winking. No, they do not wink actually. What these macrophages do? They start releasing a chemical. It's like कि ठीक है आप इनगल्फ नहीं हो पा रहे हो, अभी आपकी खबर लेते हैं. और वो एक स्पेशल केमिकल रिलीज करती है और इस स्पेशल केमिकल का नाम होता है पायरोजन. सो पायरोजन्स आर द केमिकल which are released, which are generated, which are secreted by infected macrophages. And these pyrogen, the concentration of pyrogen, it increases in your blood. The concentration of pyrogen increases in your blood, and from your blood this pyrogen goes to your brain. From your blood this pyrogen is going to your brain part, and after reaching your brain it is asking your hypothalamus to increase the body temperature. तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्टेड मैक्रोफेज स्पेशल केमिकल बनाती हैं जिनको हम पायरोजन कहते हैं, वो पायरोजन ब्रेन के पास जाके हाइपोथैलेमस को एक हाई थर्मोस्टेट पे सेट कर देते हैं. टेम्परेचर बॉडी इज इंक्रीज्ड. ऐसा क्यों करते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया फैगोसाइटाइज नहीं हो पा रहे हैं तो इनको हाई टेम्परेचर पे किल कर दिया जाए. एक कंडीशन तो ये कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, ये बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, एकदम ठीक हो गए. कंडीशन नंबर 2, ये बैक्टीरिया नहीं ख़त्म हो इस टेम्परेचर से. अगर नहीं ख़त्म हो तो क्या पायरोजन्स और रिलीज होंगे? आंसर इज यस. मोर पायरोजन्स आर रिलीज्ड, मोर पायरोजन्स आर रिलीज्ड, और तब आपका क्या होगा? अ हाई थर्मोस्टेट वुड बी डेवलप्ड. ये जो हाई थर्मोस्टेट है आपकी फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम को अफेक्ट कर देता है. इट कुड बी लेथल, इट कुड बी फैटल एज वेल. हाई टेम्परेचर से डेथ भी हो जाती है. तो खैर एक नॉर्मल हाई टेम्परेचर इज़ ए फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो जब भी आपको कभी बुखार आए, इनिशियली इट्स अ गुड थिंग, योर बॉडी इज़ फाइटिंग फॉर यू, बट आपको इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर अंडर अटैक. तो जब फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, इट इंक्लूड पीएच ऑफ स्टमक, इट इंक्लूड लाइसोजाइम, इट इंक्लूड सीरोमेन, वजाइनल सिक्रेशंस, यूरिनरी ट्रैक्ट सिक्रेशंस, salivary secretion, and a high temperature. Is that clear? Now I would love to mention here that this physical barrier and physiological barrier, this physical and physiological barrier, they collectively make first line of defense. First line of defense. तो किसी भी बैक्टीरिया, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर ए बैक्टीरिया. कंपटीशन इज एवरीवेयर. Everywhere there is competition in life. Even for a bacteria to survive in our body, that bacteria first need to compete with the physiological barrier. Then that bacteria need to compete with the physical barrier, and then it need to compete with physiological barrier. So first line of defense is passed. Don't worry, we still got second line of defense and third line of defense, and then only we got ill. That only we got infected. ठीक है बेटा. अब थर्ड बैरियर की बात करते हैं. तो पहला बैरियर क्या पढ़ा आपने? फिजिकल बैरियर. दूसरा बैरियर पढ़ा आपने फिजियोलॉजिकल बैरियर. जो थर्ड बैरियर पढ़ेंगे दैट वुड बी यूअर सेलुलर बैरियर. द थर्ड बैरियर इज ऑफ इनेट इम्यूनिटी. थर्ड बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज सेलुलर बैरियर. ये सब होने के बाद भी अगर बैक्टीरिया कंट्रोल में नहीं आया है तो बॉडी की कुछ सेल्स एक्टिव हो जाती हैं. देखो अब तक जितने हमने बैरियर पढ़े हैं वो किसी बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो हर चीज़ के लिए एक जैसा काम कर रहे हैं. आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया आ जाए, ट्यूबरक्लोसिस आ जाए, प्लेग आ जाए, XYZ जो भी आ रहा है, ये सारे काम ऐसे होते चले जाएंगे. तो इनेट इम्यूनिटी हम नॉन स्पेसिफिक पढ़ते जाते हैं. एक्वायर्ड में आई विल बी टेलिंग यू कुछ स्पेसिफिक एक्शंस हो रहे हैं. तो इन सेलुलर बैरियर जो सबसे पहला सेल पढ़ेंगे हम, चलो, जो डिफेंस सेल होते हैं हमारे बॉडी में उनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स में जो सबसे ज़्यादा
अबंडेंट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका होता है, उनकी जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लॉब्ड होता है। उनके न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कई तरह की होती है। तो जो पहला मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको बताया जा रहा हूँ न्यूट्रोफिल्स के बारे में, और उन्हीं का नाम होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज द अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो फर्स्ट इन सेलुलर बैरियर द फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, or let's call them polymorphonuclear leukocytes, PMNL, polymorphonuclear leukocytes। एक ऐसा ल्यूकोसाइट जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग अलग तरह की है। तो अगर सिंपली एक बना के भी दिखाया जाए आपको, लेट्स से दिस इज न्यूट्रोफिल हेयर, और इसके अंदर जो है ना खूब सारे लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्ड होती है, बताया था आपको। नाउ दिस इज योर ब्लड वेसल, दिस इज योर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, एंड दीज आर द न्यूट्रोफिल्स, द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट फैगोसाइटोटिक, मोस्ट मोटाइल। आप याद रखना, लेट्स से दिस इज द साइट वेयर यू गॉट एन इन्फेक्शन, दिस इज द साइट where you got a infection here. So some deadly bacteria has invaded this part. The very first cell which reaches the site of infection are neutrophils. The very first cell which reaches the site of infections are neutrophil. वहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं मैं ये भी बताऊँगा आपको, कि थोड़ा वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन के बाद परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से लीक करेगी, उसको डायबिटिस कहेंगे, और वहाँ जाके ऑन द साइट ये इसको अटैक करना शुरू कर देगा। व्हाट आई टोल्ड यू, सबसे पहले जो सेलुलर बैरियर होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल के बारे में आप अभी याद रखिए, वो ऑन द स्पॉट पैथोजन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो ऑन द स्पॉट एंटीजन लाइसिस कराने की कोशिश करता है। तो दो ही केस हो सकते हैं, क्या तो उसने जाके उसको मार दिया, या फिर वहाँ पे जाके न्यूट्रोफिल पहुँची थी पर बाद में उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, तो पैथोजन ने न्यूट्रोफिल को ख़त्म कर दिया। तो अगर पैथोजन ने न्यूट्रोफिल को ख़त्म कर दिया तो आप बीमार होने वाले हैं, और अगर न्यूट्रोफिल ने पैथोजन को कंट्रोल कर लिया तो आप बीमार नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कौन सा पहुंचता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आप ये याद रखना क्यों पहुंचता है, इट इज़ मोस्ट मोटाइल, इट इज़ मोस्ट नुमेरस, मोस्ट मोटाइल एंड मोस्ट नुमेरस। अभी एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा तो शायद कुछ चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। और भी यहाँ पर सेल्स हैं इन ब्लड सर्कुलेशन, देयर अदर सेल्स एज वेल, और उनका जो न्यूक्लियस है ना वो कुछ ऐसा है, इट इज़ समथिंग लाइक ए बीन। क्या नाम है इन सेल्स का? इनको छोटा छोटा क्यों बना रहे हो, ये सबसे बड़ी है इनमें, जब हम साइज़ की बात करते हैं दे आर द लार्जेस्ट वन, bean shaped nucleus. What is the name of these cells? These cells are monocyte. These cells are monocyte. ये भी सर्कुलेट कर रही हैं। अब इन्होंने देखा कि इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, न्यूट्रोफिल इन्वेड करता जा रहा है। न्यूट्रोफिल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायबिडेसिस। डायबिडेसिस का मतलब क्या हुआ, जब ब्लड सेल ब्लड वेसल को छोड़कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाए, तो ये जो मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल होता है इसको बोलते हैं डायबिडेसिस। स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड सेल आउटसाइड द ब्लड वेसल, स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड सेल आउटसाइड द ब्लड वेसल इज डायबिडेसिस। तो जब न्यूट्रोफिल डायबिडेसिस कर रही थी तो ये जो मोनोसाइट है इन्होंने भी डायबिडेसिस किया। दीज मोनोसाइट्स आल्सो अंडरगो डायबिडेसिस। क्या हुआ होगा मैं बता देता हूँ। आफ्टर द इन्फेक्शन आप ना, इसमें हम इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। आपके बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो हिस्टामीन रिलीज करना शुरू कर देता है, हिस्टामीन प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जो हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले दे अंडरगो वैसोडाइलेशन, दे अंडरगो वैसोडाइलेशन, वेसल्स डायलेट हो गई।
वेसल्स डायलेट होने के बाद जो ये वेंडरिंग ब्लड सेल थी ये क्या करना शुरू करेंगी, दे स्टार्ट स्टिकिंग टू द ब्लड सेल वॉल। जो भी ये एंडोथीलियल सेल हैं उनके साथ ये सेल स्टिक कर जाती हैं पहले, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड राइट नाउ, फर्स्ट दे स्टार्ट स्टिकिंग हियर। तो वैसोडाइलेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, इट वुड अंडरगो एडहेशन, इट वुड अंडरगो एडहेशन। एडहेशन के बाद थर्ड they would be squeezing outside blood vessel, and what is the name of that process, they would be moving outside, the name of that process is diapdesis, diapdesis। अब इनको पता कैसे चलता है साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, दे स्टार्ट, देखो एक्टिव मूवमेंट होता है डायप्डेसिस, और जो कीमोटैक्सिक मूवमेंट करेंगे वो भी एक्टिव मूवमेंट होगा। फोर्थ वुड बी कीमोटैक्सिक मूवमेंट, they start going towards the site of infection। और जो फिफ्थ होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोसाइट राइट नाउ, ये जो चार मूवमेंट है ये दोनों करती हैं। अब दो चीज़ हो सकता है, क्या तो वहाँ जाके ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन इसको ख़त्म कर दे, इसको लाइसिस कर दे, या दूसरा है उसको जाके वहाँ पर इनगल्फ कर ले, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस करने से पहले क्या क्या करना होता है, वैसोडाइलेशन होता है, एडहेशन होता है, डायप्डेसिस होगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होंगे, एंड देन दे वुड बी फैगोसाइटोसिस। तो आपकी दो सेलें जो जा रही हैं, जब ये मोनोसाइट साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाएंगी तो इनका नाम हो जाता है मैक्रोफेजिस, इनका नाम हो जाता है मैक्रोफेजिस। सो व्हाट आर मैक्रोफेजिस बाय डेफिनेशन। सुने आप मोनोसाइट के बारे में, क्लास 11th में जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है वो तो सुन ही लें। मोनोसाइट साइज़ में सबसे बड़ी होती हैं, उनका कंसंट्रेशन 2 to 10% के करीब होता है, वो 10 से 20 घंटे ब्लड सेल में, ब्लड वेसल में ट्रैवल करती है, उसके बाद डायप्डेसिस से वो बाहर निकल जाती है, और जब मोनोसाइट किसी टिश्यू या ऑर्गन में इन्वेड करती है तो उनको मैक्रोफेजिस कहते हैं। यहाँ पर दो सेलें जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँची है, पहली कौन सी पहुँची, न्यूट्रोफिल, और दूसरी कौन सी पहुँची, मैक्रोफेज। और मैं ये बता दूँ, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस नहीं करती है, न्यूट्रोफिल मोटाइल तो होती हैं तो वो फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं, और जो मैक्रोफेजिस होती हैं वो मोटाइल भी होती है, वो फैगोसाइटोसिस भी करती हैं। मैक्रोफेज मोटाइल भी होती है, वो फैगोसाइटोसिस भी करती हैं। देखो मतलब फैगोसाइटोसिस क्या न्यूट्रोफिल करती है, न्यूट्रोफिल है फैगोसाइटोटिक एक्चुअली, बट दे डज नॉट अंडरगो एंटीजन प्रेजेंटेशन। करेक्शन हियर, न्यूट्रोफिल आल्सो अंडरगो फैगोसाइटोसिस बट दे डज नॉट अंडरगो एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दो सेल पहुँची, फर्स्ट सेल इज न्यूट्रोफिल इज रीचिंग देयर एंड सेकंड सेल मैक्रोफेज इज रीचिंग देयर। अगर ये न्यूट्रोफिल इसको इनगल्फ करके यहीं पर ख़त्म कर देती है, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ करके यहीं पर ख़त्म कर देती है, तो उसको बोलते हैं नॉन एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसने कोई भी एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं किया। अगर न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ करके यहीं पर ख़त्म कर देती है तो कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं किया। और मैक्रोफेज के केस में फर्स्ट इट वुड बी इनगल्फिंग बैक्टीरिया, और फिर वो यहाँ से लेके जाएगा इम्यून हेडक्वार्टर के पास, यहाँ से लेके जाएगा इम्यून ऑर्गन के पास, लिम्फॉइड ऑर्गन उनको बोलते हैं, इम्यून ऑर्गन सा लिम्फॉइड ऑर्गन। तो मैक्रोफेजिस करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन, न्यूट्रोफिल एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करता है। आई रिपीट, सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे दो सेल पहुंचती है, पहली सेल है न्यूट्रोफिल और दूसरी सेल जो हम पढ़ने वाले दे आर मैक्रोफेजिस। साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंचने के लिए वैसोडाइलेशन, एडेशन, डायप्डाइसिस, कीमोटैक्टिक मूवमेंट एंड फैगोसाइटोसिस जरूरी है। फैगोसाइटोसिस कैसे होता है वो अभी बताने वाला हूँ। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटाइज करके पूरा का पूरा बैक्टीरिया या पैथोजन को ख़त्म कर देता है, और मैक्रोफेज फैगोसाइटाइज करके पूरे बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करता है, उसके एंटीजन को लेके जाता है इम्यून हेडक्वार्टर, लिम्फेटिक ऑर्गन के पास। इज दैट क्लियर? ये जो पार्ट है ना आगे भी आने वाले हैं, तो डोंट वरी, ये वाले नाम लिखते रहें, अभी के लिए काफ़ी है। जैसे जैसे इम्यूनोलॉजी पढ़ते जाएंगे तो शायद और अच्छे से आते चले जाएंगे, तो शायद और अच्छे समझ में आ जाए आपको।
ऑलराइट, मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। तो मैक्रोफेजेस आर द सेकंड, तो सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल से बचना होगा उसको, उसके बाद उसको बचना पड़ेगा मैक्रोफेजेस से। अब मैक्रोफेजेस कहाँ से बनती है? मोनोसाइट से बनती है, और मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैक्रोफेजेस के अंदर किस तरह का न्यूक्लियस होता है? बीन शेप न्यूक्लियस होता है, मैं ये भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैक्रोफेजेस दो तरह की होती हैं, एक आपकी होती हैं वैंडरिंग, जो इधर उधर घूमती रहती, राउंड लगाती रहती हैं, और दूसरी होती है अटैच्ड या मेम्ब्रेन बाउंड। वन इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड सेकेंड इज वैंडरिंग मैक्रोफेज। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ये स्पेशल ऑर्गन में जाके बस उसी की होके रह जाती हैं। और मैंने कुछ आपको ना नॉन वैंडरिंग या मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जाम्पल भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड लीवर में है तो उस मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं? कफर सेल। अगर मेम्ब्रेन बाउंड लीवर में है तो मैक्रोफेज को बोलेंगे कफर सेल। अगर किडनी में है तो क्या बोलेंगे? वी कॉल डेट रेनल मैसन ग्लायल सेल। ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्रेन में है तो इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लायल सेल। अगर ये बोन्स में है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। और जो नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यूज साइट्स, हिस्ट्रियोसाइट या क्लास्मेटोसाइट और क्लास्मेटोसाइट। अगर ये लंग्स के अंदर है तो क्या बताया था उसको? लंग्स में बोलते हैं डस्ट सेल। इन लंग्स वी कॉल डेट डस्ट सेल। एल्वुलर मैक्रोफेजेस आर डस्ट सेल। तो बच्चे, पहला हो गया न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया मैक्रोफेजेस। अब चलो फैगोसाइटोसिस, अगर आपसे पूछा जाता है फैगोसाइटोसिस में क्या क्या इवेंट होते हैं, इवेंट इन फैगोसाइटोसिस, जब दोनों फैगोसाइटोसिस वाली सेल पढ़ ही रहे हैं तो इवेंट इन फैगोसाइटोसिस वुड बी वैसोडाइलेशन, एडहेशन, डायबिडेसिस, कीमोटैक्टिक एंड देन दे वुड बी फैगोसाइटोसिस। ये चार इवेंट होने जरूरी, तब जाके फैगोसाइटोसिस होगा। तो जो फैगोसाइटोटिक सेल होती है, दिस इज द लाइसोसोम हियर, दिस इज लाइसोसोम हियर। वो इस मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर लेती है बाय इट्स नेचुरल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए डायबिडेटिक मूवमेंट कैसे होते हैं, द एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट इज डायबिडेसिस। क्लास 11 में पढ़ लिया था वैसे। जो भी पैथोजन होगा उसको इनगल्फ कर लेगी, और ये पैथोजन जब इस सेल के अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं, ये फैगोसाइटोटिक वैक्यूल बना है, इसको बोलते हैं फैगोसोम। दैट इज फैगोसोम। बैक्टीरिया जिसको आप कैद करके लाए हो, वो इनगल्फ कर लिया सेल। इनगल्फ बैक्टीरिया इज फैगोसोम। इनगल्फ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेज इज फैगोसोम। ये फैगोसोम ये ज्वाइन करेगा, दिस लाइसोसोम गो एंड बाइंड विद फैगोसोम। दिस लाइसोसोम गो एंड बाइंड विद फैगोसोम। और जो नया स्ट्रक्चर बना हो उसको बोला फैगोलाइसोसोम। और अगर फैगोलाइसोसोम एक बार बन गया तो लाइसोसोम में जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इसकी स्लॉटरिंग शुरू कर देते हैं। लाइसोसोम में जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे वो उसकी स्लॉटरिंग शुरू कर देंगे, और जो भी स्लॉटर्ड मटेरियल है वो बाद में डिफ्यूज आउट हो जाता है और बाय एक्सक्रीशन और डिफिकेशन बॉडी से बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम, देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम, एंड देन देयर इज स्लॉटरिंग ऑफ बैक्टीरिया, then there is slaughtering of lysis of bacteria। ठीक है बेटा, ओके। तो सेल्स की बात कर रहे थे, पहली हो गई न्यूट्रोफिल, दूसरी हो गई मैक्रोफेजेस। और कौन से सेल होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। There are more cells which are present, आप उनके बारे में याद रखना। अच्छा, इन्फ्लेमेशन भी कुछ ऐसा होता है, जो हमने फैगोसाइटोसिस पढ़ा ना, इन्फ्लेमेशन इज द अदर नेम ऑफ इन्फ्लेमेशन आल्सो इंक्लूड फैगोसाइटोसिस। इन्फ्लेमेशन इज द अदर नेम ऑफ नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन।
I will be coming on inflammation as well, don't worry. The third one, there are certain more cells in our body, there are certain more cells in our body which are referred as to natural killer cell. These cells are referred as to natural killer cells, and these natural killer cells are also known as NK cells. Natural killer cells are also known as NK cell. ये भी बोन मैरो में ही बनती हैं, ये भी एक तरह के लिम्फोसाइट हैं, पर ये नहीं प्रेजेंट करती बी सेल और टी सेल रिसेप्टर. दे आर विदाउट, दीज आर द लिम्फोसाइट without B and T cell receptor. These are the lymphocytes without B and T cell receptor. देखो जो आप टी किलर सेल पढ़ोगे वो अलग होगा, नेचुरल किलर सेल अलग होता है. ये नॉन स्पेसिफिक वे में काम करते हैं. और ये कैसे काम करेंगे? नेचुरल किलर सेल वर्क बाय टू वेज. आइदर दे अंडरगो साइटोलाइसिस. ये बैक्टीरिया, ये नेचुरल किलर सेल सर्टेन केमिकल रिलीज़ करती है जिनको बोलते हैं परफोरिन. नेचुरल किलर सेल सर्टेन केमिकल रिलीज़ करती हैं जिनको बोलते हैं परफोरिन्स. और ये परफोरिन्स क्या करता है? बैक्टीरिया की वॉल में पोर बना देता है. इसी को बोलते हैं साइटोलाइसिस. अब बैक्टीरिया की वॉल में एक बार पोर बन गए तो जो भी बैक्टीरिया के अंदर है क्या तो वो बाहर चला जाएगा या खूब सा पानी बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा. इवेंचुअली बैक्टीरियल लाइसिस हो जाएगा. तो इट अंडरगो साइटोलाइसिस वाया स्पेशल केमिकल विच यू कॉल परफोरिन्स, पहला. और दे कैन इंड्यूस प्रोग्राम सेल डेथ. दे कैन इंड्यूस प्रोग्राम सेल डेथ which is known as apoptosis. They can induce program cell death which is known as apoptosis. तो बेटा सेलुलर बैरियर में आप याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में, मैक्रोफेजेस के बारे में एंड नेचुरल किलर सेल के बारे में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है विच इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर एंड दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. सो डी पार्ट वुड बी complement system. And complement system I will be recording in other video. Complement system, inflammation and cytokine barrier I will be recording in other video. For now this is all. Like for the time being आप ये इतना पढ़े, उसके बाद I will be recording the other video. Thank you.